रियल एस्टेट है क्या? कॉन्ट्रैक्टर को काम कर दिया दे दिया, आर्किटेक्ट को प्लानिंग के लिए दे दिया, ब्रोकर्स को बेचने के लिए दे दिया। तो रियल एस्टेट है क्या? रिसोर्सेज मैनेज करना है और रिस्क लेना है। बाकी तो क्या, ये सबको इकट्ठा करके जो प्लस माइनस सबको पेमेंट करके जो बचा वो आपका, दैट इज कॉल्ड द रियल एस्टेट। So before that, I want you to give a basic idea about GIFT City. इनकम टैक्स नहीं लगता, जीएसटी नहीं लगता, स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती, जो एसईजेड के अंदर। Why was there a need to make an AIF? तो गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर में देवर ओनली 2 फॉर्मेट्स, एक एआईएफ था, एक स्टॉक मार्केट था। ये भी सेबी रजिस्टर्ड है, स्टॉक मार्केट भी सेबी रजिस्टर्ड है। But how is it helping the investors? सो ये प्रोफेशनल अप्रोच है, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया कि भाई आप अपना धंधा करो, आप अपना काम करो, एंड देन यू हैंड ओवर योर मनी टू समवन हु इज एक्सपर्ट इनटू द डोमेन। How much can investors expect a return in an annual basis? वी आर एक्सपेक्टिंग इस % के आसपास। What might be your biggest learnings from this journey? अर्थक्वेक देखा, मार्केट कॉलेप्स देखा, रेट्स देखी, पर धंधा तो यही है, सालों से यही चल रहा है, सब लोग यही धंधे में कमा रहे हैं। सो रियल एस्टेट में 100 में से 99% लोग कमाते हैं, बट बिलियनर नहीं होते, पर सब कमाते हैं। Hello everyone, today here we are with a very special guest in Ahmedabad, Mr. Chitrak Shah, who is the Managing Director of Shivalik Group. Today's session is going to be very interesting because we are going to understand how they have built an ecosystem of various different verticals, from being a developer firm, introducing their construction team, introducing the interior vertical, an AIF vertical, and an institute which can help you all to understand real estate better. So welcome to the Speaking Real Estate podcast. Thank you. Chitrak bhai, how are you? I'm good. How are you? I'm good. Ahmedabad is great. Thank you. Yeah, it has to be. When growing city है. Definitely. Normally start हम education career journey से ही करते हैं, तो we can start off with your education. My personal education, so I'm a commerce graduate. जब हमारा business stock market का था, at that time I chose another line. Then when I passed 12th, then father ने line change किया. Then I started my office, real estate office with him. Okay, so how was the journey of starting this group? So we were into stock market till 1998. I joined business. I did 6 months stock market with the father. Then as a family we decided कि नहीं यार, price control हमारे हाथ में नहीं है. So we thought कि ऐसा कुछ करते हैं जो हम लोग value addition करें. So we were investor in some of the projects. तो वहाँ से हम लोग ने gradually real estate चालू किया. So that's how we jumped from the stock market to the real estate. So from stock market and you were an investor then, and then you shifted into being a developer. Yes. तो पहला प्रोजेक्ट कौन सा था, वो कैसे किया, क्या मॉडल था? एक संजय टावर करके था जो श्याम और हाउस के पास है, वो बहुत बड़ी अपार्टमेंट थे, उसका फर्स्ट प्रोजेक्ट। And when we started, it was sold from the day one because सब references वाले थे, पुराने क्लाइंट, जो स्टॉक मार्केट के फ्रेंड्स, फैमिली, वो सब ने ले लिया। सो वी कॉन्फिडेंट कि भी नहीं, अभी ये तो बहुत इजी बिजनेस है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, लॉन्च करो, दूसरे दिन माल बिक जाए। देन इमीडिएटली वी बॉट सेकेंड प्रोजेक्ट जो 360 अपार्टमेंट का था, जो सचिन टावर है। सो वहाँ पे जैसे ही वो लॉन्च किया तो 5% भी बुकिंग नहीं हुआ। देन वी रियलाइज कि ये टफ कॉल है, और वो 98 वॉज द डिक्लाइन फेस ऑफ द मार्केट। सो धीरे धीरे मार्केट गिर रहा था। सो 2000 में और गिरा ग्रेजुअली, और वो पेस पे हम लोग इन्वेंट्री बढ़ा रहे थे, तो और टफ हो रहा था ग्रेजुअली, बट देन वी मैनेज्ड। So you started in 1998, and how was the initial 10 years of scaling business? तभी मतलब how was the growth phase? Because right now I think so since past 5-4 years you have scaled up to very fast comparatively in the past 2 decades. Right, yeah. Because gradually we were only focusing into commercial from 2001 to 2011, 12, 15. Then we added residential apartment. पहले जो संजय टावर से चालू किया था 2001 तक we were into residential. Then 2001 से we thought कि business वाले जो होते उनसे डील करें पहले, एंड फास्ट टर्नओवर होगा, एंड मेन रोड पे विजिबिलिटी आए वैसा प्रोजेक्ट करे, एंड स्मॉल साइज करे। सो फास्ट टर्नओवर हो, फास्ट खत्म हो जाए, तो 5 साल के 5 माले की बिल्डिंग, 5 फ्लोर्स, कमर्शियल प्रोजेक्ट एंड मेन रोड, ये जो मिल रहा था प्लॉट वो सब ले रहे थे। अच्छा। और उसी में पैसा घुमा रहे थे, उसी में पैसा घुमा रहे थे, तो 1.5 साल में 2 साल में पोजीशन दे देते थे।
बाजू वाले 10 माला 9 माला वो बनाए फ्लोर्स एंड वी वर डूइंग 5 फ्लोर्स. तो वी टेल देम हमारे कस्टमर को कि भाई हम लोग उनसे आधे टाइम में डिलीवरी कर देंगे बराबर है. ग्रेजुअली. तो दैट्स हाउ वी रोटेटेड द मनी. बिकॉज जो 98 से 2001 में जो फेज था वो वापस रिकवरी करनी थी, कम पैसे से साइकिल घुमानी थी. तो देन वी स्टार्टेड कमर्शियल 2001 तक. देन वी, बिकॉज वो छोटे प्रोजेक्ट थे, देन गवर्नमेंट स्टार्टेड गिविंग मोर FSI. 2011 से FSI बढ़नी चालू हुई, 15 से. या देन ग्रेजुअली सेम लोकेशन पे यू कैन गेट बिल्ट अ बेटर project and with the more height. So then we started scaling up. कि अभी now we are getting more FSI, good cash flow. हमारे पास भी bandwidth हो गई, नाम भी अच्छा हो गया, partner, investor सब support करके now we scaled then. So initially it was delivering faster than the competitors to beat them, but when you get the opportunity to build more because of increase in FSI, तो आप लोग फिर high rises और बड़े buildings बनाने Yes, के. because then 2011 से क्या हुआ, ये सब पैसा घुमा रहा है, सब नया क्या किया. सो जो जिग्स होता है नया करने की वो 2011 से चालू हुई कि खैर कुछ नया करते हैं. कोई पर्टिकुलर रीजन जहाँ से वो एक्सपोजर मिला कि कुछ डिफरेंट करना है? सो वेन एवर वी ट्रैवल अब्रॉड, जैसे मेक माई ट्रिप 90, ये सब फ्लाइट्स सस्ती हुई, पोर्टल्स आ गए, देन वी स्टार्टेड रोमिंग अराउंड एवरीवेयर. सो लोग दुबई ग्रो हो रहा था. सो पीपल आर कनेक्टिंग कि यार दुबई जैसे बिल्डिंग नहीं है, न्यूयॉर्क जैसे नहीं है, ये अहमदाबाद के अंदर वाई बिल्डिंग्स कांट बी लाइक दिस. सो वी थॉट डिज़ाइन पे कुछ नया करते हैं. देन वी स्टार्ट के चलो पैसे तो बहुत कमा लिए, बहुत घुमा लिए. देन एक प्रोजेक्ट किया जो थोड़ा सा अलग डिज़ाइन में था. देन दैट चेंज. सो फास्ट की जगह अच्छा करना था, वो पैटर्न हो गया. फिर ट्रैवलिंग काफ़ी मोटिवेट करता है और काफ़ी कुछ सिखाता है. बहुत. So coming to one thing, what I found online, that you have changed the name earlier from SN Developers to Shivalik, and there was a particular reason for it. There is no reason. SN Developers belongs to my father's name, Satish Nyalchan. Then gradually we got famous with the brand name of Shivalik. Then we thought, why to make two brands? SN Developers different and Shivalik is different. Then let's make one. जैसे Airtel and Bharti वैसे दो नाम थे. Gradually, then we thought कि एक ही नाम कर देते. So we just changed SN Developers to Shivalik Developers. Okay. So how do you want to position Shivalik brand in the real estate community? So it's a customer-centric brand. Innovation is a core. I would say innovation or ahead of curve in the city. We wanted to try new things, but the main approach is the customer-centric. A good building, good design. Compare it to the Ahmedabad real estate market. We can't compare with the Delhi, Mumbai or Bangalore because their prices are different. The cost of the construction is different. यहाँ पे हमको वही चीज़ अहमदाबाद के प्राइस से प्ले करनी पड़ रही है. सो वी सी सिटी इज़ वेरी गुड, स्केल अच्छा हो रहा है. Many developers who are out there, they many times pass on a statement कि let's say for बॉम्बे की बात करें तो कि बॉम्बे में काफ़ी है तो बॉम्बे के बाहर जाने की इच्छा नहीं है. And you also have a good hold in Ahmedabad. So do you have the same feeling that Ahmedabad ही काफ़ी है or you wish someday to develop outside Ahmedabad as well? Before going to fishing, we are preparing net. Right. So पूरा स्ट्रक्चर कर रहे हैं, सॉरी इकोसिस्टम खड़ा कर रहे हैं ग्रेजुअली. देन वंस वी आर स्टेबल, यहाँ पे पूरा सेट हो जाए, ऑटोमेटेड सिस्टम्स हो जाए, देन वी मे थिंक, आई थिंक इट विल टेक 2 to 3 years more. We started Rajkot, Surat also. Okay. But then we closed down the operation, then we scale here only. So now coming to selecting projects, what are the major factors that you consider before selecting a project? Location, maybe top line? So in commercial, normally it has to be on a good location, live location. And in residential, either bungalow or apartment, it can be into the upcoming area. So क्या होता है कि उसका appreciation ज़्यादा है. Because in commercial, आपको business वाले एरिया में बैठना पड़ रहा है. You can't go upcoming area में because तब तक तो आपको वहाँ staff के issues होंगे, लोगों को आना होगा. And residential में people are investing and they also want appreciation. So हम लोग try करें upcoming area में करें. Any location strategy or anything you can... Location has to be best. Okay. Good roads, a good connectivity. And Ahmedabad है ही पूरा
राउंड जो रिंग रोड से सराउंडेड है, सो पूरी सब बाजू बड़ा हो रहा है. सो जो भी नए लोकेशंस जहाँ से डेवलपमेंट ख़त्म हुआ वहाँ से सभी अपकमिंग जो भी एरियाज़ है वहाँ पे प्रोजेक्ट करो, तो वही स्ट्रेटजी है. बाकी तो अहमदाबाद में एवरीबडी नोज ऑल स्ट्रेटजी कि भी यहाँ से आगे बढ़ना है बस. Got it. Now coming to Ahmedabad's development in the real estate industry. When you entered 26 years ago, तब कैसा था real estate industry और आज किधर है? See, real estate industry if divided in two part, बाहर के डिज़ाइंस, मटेरियल्स एंड FSI चेंज हुए, बाकी सालों से सेम ही है. RCC हो रहा है, स्ट्रक्चर वही है, खाली अभी प्रीकास्ट, प्री फैब्रिकेटेड, थोड़े मटेरियल चेंज हुए, ब्लॉक्स हुए, डिज़ाइंस अच्छी हुई. नाउ पीपल वांट सर्विसेज ऑल्सो, तो वो धीरे धीरे ऐड हो रहा है. सो पहले जो था वो खाली लेके बेच दो, देन वो जाने आप जानो. अभी ग्रेजुअली आफ्टर हैविंग लॉट ऑफ अवेयरनेस, पैसा आ रहा है लोगों के पास, पैसा कमा रहे, दे नो द वैल्यू ऑफ टाइम. सो अभी नाउ लोगों को सर्विस भी चाहिए. सो नाउ इट्स रियल एस्टेट इज ओनली नॉट ओनली अ रियल एस्टेट बिजनेस, इट इज़ कम्बाइंड विद द सर्विसेज के आप पीछे और क्या दे रहे हो, उनका टाइम कैसे बचा रहे हो, उनके क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो. सो इंडस्ट्री इज इवॉल्विंग. सो पहले खाली रियल एस्टेट था, अभी रियल एस्टेट विद हॉस्पिटैलिटी, या यू कैन से दैट. You wish to develop any other different asset classes like warehousing, hospitals, hotels? वी डिड अ होटल, 3 होटल किया था अहमदाबाद में, 2 एक राजकोट में. पर हमको लगा कि दिस इज ऑल्सो रियल एस्टेट गेम एंड ऑपरेशनल इज नॉट आवर कप ऑफ टी. तो बेटर है वी शुड फोकस इन टू मेकिंग द बॉक्सेस इंस्टेड ऑफ गेटिंग इन टू द बिजनेसेस inside the boxes. So the real estate is just making the boxes, and whoever wanted to do a business inside the building, then let them do. So then we change the strategy कि हम लोग बॉक्स बना के दे देंगे, फिर जिसको जो करना हो. So 2-3 बिजनेस किए, 2-3 होटल्स किए, 2-3 रेस्टोरेंट्स भी किए, but then we decided कि नहीं, this is the core. What were your major learnings from doing that business? As an individual, if you are focusing into one business, then the scale is very easy. You can only hire the CEO, or maybe you can hire the team to run second business, then you can invest, but you can't run 2 businesses. So you have to go leaner to scale faster. Understood. Now I want to go and understand the whole ecosystem, how it got started building, how is it right now, and what is your further vision for that? We'll select one vertical at a time with starting from the Shivalik Real Estate Institute. सो 20-25 साल हुए हम लोग के साथ बहुत सारे पार्टनर्स ने ग्रो किया, जिन बहुत सारे इन्वेस्टर्स कमाए. लोग हर रोज़ पूछने आते थे. क्रेडाई में आई एम एक्टिव, आई एम चेयरमैन. सो बहुत सारे लोग पूछने आते थे. हम लोगों को लगा कि आज भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या इश्यूज़ है क्या नहीं. सो थोड़े से छोटे स्केल पे वी स्टार्टेड एक इंस्टीट्यूट करते, क्रेडाई के अंदर ही किया अभी. देन दैट्स हाउ वी एडेड फर्स्ट वर्टिकल. सो आज ऐसी हालत है, सुबह दोपहर शाम 3 बैचेस चल रही है. सो पीपल वांट, और वो गैप था पूरी इंडस्ट्री में, किसी को समझ में नहीं आता. इवन द मैच्योर डेवलपर कैन नॉट टीच हिज सन एट हिज ऑफिस. Right. कौन सिखाएगा? दे आर गुड टू मेक द बिल्डिंग, दे आर नॉट गुड टू टीच द पीपल. सो कौन सिखाएगा? सो वी थॉट कि नहीं, ये गैप है, हम इन लोगों को पुश करना है, हमको अहमदाबाद चेंज करना है, सपोज इंडिया नया बनाना है, लेट्स से. तो एज ए शिवालिक ओनली वी कैन नॉट डू. सो द विजन है इसके भी सिटी को अच्छा करते हैं पहले. लेट्स नॉट टॉक अबाउट द बिगर पिक्चर कि इंडिया की बात, पर सिटी को अच्छा करते हैं. सिटी के लिए अच्छा करने के लिए क्या करेंगे? तो वी नीड गुड डेवलपर्स. तो डेवलपर्स कैसे बनाएंगे, कैसे ट्रेन करेंगे? सो एज ए मैच्योर डेवलपर वी कांट ट्रेन देम कि आप ये करो वो करो, बिकॉज दे हैव सेट माइंडसेट कि नहीं हम लोग कर रहे हैं जो अच्छा ही चल रहा है. सो जो नए डेवलपर है, बडिंग एंटरप्रेन्योर्स है, जो डेवलपर के सन है, उनको सीखना था, पर उनके फादर वेर नॉट गुड मेकिंग देम लर्न. सो ये गैप हमको लगा. सो देन वी स्टार्टेड, सब कंसल्टेंट को ऑन बोर्ड किया, सब एक्सपर्ट्स को बुलाया, देन वी क्यूरेटेड द कोर्स. दैट्स हाउ वी स्टार्टेड. आप कोर्स के बारे में बता सकते हैं? सो इट्स अ फर्स्ट कोर्स इज अ JRE, जर्नी ऑफ रियल एस्टेट. वो 2 महीने का 42 डेज प्रिसाइज वर्किंग, लाइक जो पढ़ने के जो दिन है वो एवरेज टाइम 2 महीने निकलता है. 2 महीने में 3 घंटे पर डे वीक डेज पे. सो दैट्स हाउ, और पूरी साइकिल. सो 11 मॉड्यूल है, लैंड एक्विजिशन से लेके बिल्डिंग हैंड ओवर पोजीशन तो तब तक. सो स्टेज वाइज सिखाते हैं, सब एक्सपर्ट्स आते हैं, फैकल्टीज आते हैं. सपोज बहुत सारे CBRE है, JLL है, नाइट फ्रैंक है, अच्छे यहाँ पे एडवोकेट्स है. वहाँ से वो लोग
उनके एम्प्लॉयज़ को पुश करते हैं आप जाके यहाँ पढ़ाओ, अच्छे चैनल पार्टनर्स है, डेवलपर्स कब आते हैं. सो देयर इज़ अ सेकेंड कोर्स लैंड का कोर्स है. सो एलआरई बोलते हैं, लैंड ऑफ रियल एस्टेट. वहाँ पे लैंड कैसे एक्विजिशन होता है, ट्रांजेक्शन कैसे होते हैं, क्या क्या ऑप्शंस है, क्या क्या आपके पास अवेलेबल जोन से अहमदाबाद में, वो सब सिखाते हैं. नाउ वी स्टार्टेड अ सेल्स सेंट्रिक कोर्स, जो सेल्स प्रोग्राम है, जो ऑन फील्ड वीक में खाली 3 घंटे पढ़ाते हैं और 5 दिन साइट पे भेजते हैं, सब जगह भेजते हैं. सो ऑन ग्राउंड ज़्यादा काम है वहाँ पे. और ये जो 2 है वो पढ़ने वाले काम है, पर वहाँ पे वी आर सेंडिंग देम टू द डिफरेंट साइट्स, गवर्नमेंट ऑफिस. सो ये एक्सपीरियंस लर्निंग है ज़्यादातर. सो बुकिश नॉलेज कोर्स नहीं. नहीं है, ये ऑन ग्राउंड ज़्यादा वर्कशॉप करवाते हैं. बहुत सारे लोगों ने 3-4 स्टूडेंट इकट्ठा करके प्रोजेक्ट्स भी किए. ओके, भी वहीं पे नेटवर्किंग हो जाता है और वो एक बेच रहा है, एक लैंड लेके आ रहा है. बराबर. हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस विद नोइंग दीज चिल्ड्रन बिफोर द कोर्स एंड आफ्टर द कोर्स? सो हमको भी लर्निंग मिलता है. वी थॉट कि यही कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगी, फिर वो कुछ अलग से लेके आते हैं. वी हैव सेट माइंड सेट एज बिकॉज वी आर रनिंग ऑन वाइट एलिफेंट, सो वी कांट चेंज दिस, वी कांट चेंज. बट उनको देखते तो लग रहा है कि नहीं, वी आर ऑल्सो देयर इन द लर्निंग कर्व ऑल्सो. सो सीखने भी मिल रहा है हमको भी. एंड पहले उनके जो क्वेश्चंस थे, पहले जो ग्रे एरिया थे, क्या होगा, अजम्पशन थे, वो अजम्पशन की जगह पे दे हैव नो क्लियर थॉट्स कि नहीं ये होगा, ये नहीं होगा. अजम्पशन लाइक 1500 रुपये में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हो जाएगी, दैट विच इज़ नॉट पॉसिबल. हम लोग 2200 बोल रहे हैं, अफोर्डेबल की बात कर रहा हूँ. सो अजम्पशन थे, वो रियलिटी पे था. सो वो फैक्ट्स जब चेक करते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि रियल एस्टेट बाद में प्रोजेक्ट 3 साल के बाद, 4 साल के बाद ख़त्म करने के बाद उनको ऐसा लगे कि नहीं यार लॉस हो गया या प्रॉफिट नहीं मिला, तब जाके फिर बोले नहीं कि रियल एस्टेट खराब बिजनेस था, बिकॉज आपने कैलकुलेशन अजम्पशन पे किया था, फैक्ट से किया. तो वी आर जस्ट ट्रेनिंग देम, दिस इज़ द प्रोसेस. ये प्रोसेस से बाहर निकलोगे तो फ्यूचर में प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा है. राइट. या बिफोर जंपिंग इन टू इट यू जस्ट क्रॉस चेक द सिस्टम्स प्रोसेसेस. से बाहर निकलोगे तो आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा पहले दिन से मालूम पड़ जाएगा. आई थिंक सो दिस इज़ अ वेरी ग्रेट वे टू गिविंग बैक टू सोसाइटी. और जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने बोला कि अपन को भी कुछ नया रियलाइजेशन होता है, कुछ नया पता चलता है. नाउ मूविंग ऑन टू द AIF फंड. यू आज पैसे रेज करने के बहुत सारे तरीके हैं. सो फर्स्टली, व्हाई वाज देयर अ नीड टू मेक एन AIF? सो एज अ रियल एस्टेट ब्रांड, पैसे तो कोई ना कोई फॉर्मेट से आते ही है. आपको ओनरशिप कर लो, लोग पार्टनर हो जाते हैं, बैंक फंडिंग हो जाता है, लैंड के इंस्टॉलमेंट्स हो जाते हैं, प्री लॉन्च में बिफोर रेरा सेल हो जाता था. बट ये स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट नहीं थे. व्हेन यू वांट टू ग्रो एट 10x लेवल, सो यू हैव टू अबाइड बाय द गवर्नमेंट लॉज. तो गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर में देयर वर ओनली 2 फॉर्मेट्स, एक AIF था, एक स्टॉक मार्केट था. तो वी चोजन कि भी नहीं, लिमिटेड प्रोजेक्ट्स को फोकस करते, HNI को टारगेट करते, सीधा जंप नहीं करते स्टॉक मार्केट में. सो ये भी से भी रजिस्टर्ड है, स्टॉक मार्केट भी से भी रजिस्टर्ड है. तो दिस इज़ अ स्ट्रक्चर्ड व्हीकल, प्रोफेशनल अप्रोच से हम लोग ने AIF चालू किया, बिकॉज गवर्नमेंट ने अभी थोड़ा रिलैक्सेशन किया रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए, सबके लिए. सो पहले जो थोड़े टफ थे, नया था, अभी ग्रेजुअली इट इज़ बिकमिंग एक्सेप्टेड मॉडल बाय एवरीवन. सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड AIF. ये भी अभी लर्निंग का ये सबके लिए. आई थिंक नाउ वी आर गेटिंग गुड रिस्पॉन्स. सो आई थिंक यू वर द फर्स्ट वन टू इंट्रोड्यूस द AIF कॉन्सेप्ट इन अहमदाबाद. तो Right. लोगों के लिए नया है, जैसा आपने कहा. पहले था, बहुत सारे लोगों ने 4-5 किए थे, अच्छा. पर सक्सेस नहीं हो पाए. सो बिकॉज स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स थे, लोग ट्राई कर रहे थे, दे वर नॉट द रियल एस्टेट डेवलपर, वो खाली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट थे. तो उन लोगों ने 2-3 बार ट्राई किए, पर आई थिंक नहीं चले. ये आपने रीज़न बताया हमें कि ये हमारे लिए, डेवलपर के लिए कैसे इजी हो रहा है AIF करने Right. से. बट हाउ इज़ इट हेल्पिंग द इन्वेस्टर्स? इन्वेस्टर्स को भी क्या है, देयर आर 2 काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स हु वांटेड टू बी इनटू रियल एस्टेट बिजनेस एंड डूइंग देयर बिजनेस बाय देयर ओन नेटवर्क. उनको तो आता ही धंधा, पर उनको जिनको धंधा नहीं आता, जिनके पास नॉलेज नहीं है कि रियल एस्टेट में ब्रोकर कहाँ से लाऊंगा, स्टैम्प ड्यूटी मैनेज करना है, जाके लैंड फाइंड करना है, लैंड मिलेगी नहीं मिलेगी, या प्री लॉन्च अपॉर्चुनिटी कहाँ पे आएगी, कहाँ पे नहीं आएगी. सो दे कैन नॉट बी इनटू द रियल एस्टेट बिजनेस डे टू डे में. क्यों? बिकॉज दे आर ऑलरेडी डूइंग समथिंग एल्स टू अर्न. सो ये प्रोफेशनल अप्रोच है, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया कि भाई आप अपना धंधा करो, आप अपना काम करो, एंड देन यू हैंड ओवर योर मनी टू समवन हु इज़ एक्सपर्ट इनटू द डोमेन. सो आप AIF पे इन्वेस्ट कर दो, HNI है, क्लोज नेटवर्क है. सो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो
म्यूचुअल फंड में और इसमें ज़्यादातर वो ओपन नेटवर्क में स्टॉक मार्केट में ये क्लोज फंड है, बस उतना ही फ़र्क है, बाकी दोनों से भी ड्रिवन है. How much can investors expect a return in a annual basis? So the fund का जो deployment strategy है, which we are expecting is 27-28% के आसपास Very high. रिटर्न्स मिलना चाहिए, because we already did 2 LOIs जो फंड रेजिंग करने के बाद जो डिप्लॉयमेंट की बात है वहाँ पे we are getting 27-28% से ऊपर मिल रहा है, पर we are writing for safer side. कभी कुछ छोटे मोटे खर्चे आ जाएंगे जैसे टाइटल का वो सब, 27-28 से ऊपर ही जाएगा. Very interesting and motivating for people to invest. So, normally, what is the format for this AIF? People put in their money on day one. When is the time that they start getting their money back? So, अगर आपने पैसा suppose we call money in 2-3 months because पैसा आगे वैसे जाएगा उसके हिसाब से, then gradually 2 से 3 साल के अंदर आपका पूरा पैसा वापस आ जाना चाहिए एवरेज, पर स्टिल वी आर सेइंग सेफर साइड 4 से 5 साल, बिकॉज डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी है. शायद ऐसा लगे कि अगले साल पैसा जाने में टाइम भी लगे, सो मोटा मोटी सेफर साइड 4 साल लेके समझो, पर देयर इज़ वाटरफॉल मैकेनिज्म. सो आज आपने पैसा लगाया तो आपको अगले साल में थोड़ा प्रॉफिट मिलेगा और अगले साल में और प्रॉफिट मिलेगा, सो धीरे धीरे करके आपके पास प्रॉफिट आता जाएगा. एंड दिस इज़ द 4 year 5 years का रियल एस्टेट का साइकिल रहता है नॉर्मली. तो आप जैसे भी आप इवन अपार्टमेंट भी लेते हो तो प्रोजेक्ट खत्म करने में भी 4 साल लग जाते हैं नॉर्मली. इट्स द सेम फॉर्मेट. इंस्टेड ऑफ बाइंग अपार्टमेंट यू आर बाइंग स्टॉक यूनिट्स, जो AIF के यूनिट्स है वो. Very interesting and simple concept. And I think so ये सारे initiatives से ही company goes to another level and moves forward in the So competition. grow करने के लिए क्या चाहिए? You need मैन पावर, you need पैसा. Right. That's what we are doing. मैन पावर इंस्टीट्यूट चला रहा है, बराबर है. पैसा फंड चला रहा है. So that's how we grow. Now we need technology, so we are jumping into technology. वो हम लोग जनवरी से किक ऑफ करेंगे. Okay. So every year we add one vertical. So me and Bhai Taral, we both work together. He is going into forward integration. I am going into backward integration. So that's how we make entire circle ecosystem. Talking about forward integration, we'll move to the vertical of your furniture business. That is forward integration. That's what I said कि कस्टमर को let's say हम लोग ने इंक्वायरी जनरेट की. There are 2 possibilities. एक शिवालिक में बाय कर रहा है, एक शिवालिक में नहीं बाय कर. Then how we can reach them again? So नहीं बाय कर रहा है वो उसको भी फर्नीचर तो लेना ही है. So again that is a lower entry barrier to enter into शिवालिक. So एक बार तो हमारे इकोसिस्टम में वो आ ही गया ग्रेजुअली. सो वही इंक्वायरी वही लोग, और उसमें भी सेम लॉजिक है कि भाई अच्छा फर्नीचर देना है, अच्छी सर्विस देनी है. दैट वाज द थॉट प्रोसेस. तो ये फॉरवर्ड इकोसिस्टम है जहाँ पे हम लोग ने अभी स्टोर किया, फ्रेंचाइजी से टाइप किया, जहाँ पे हमारी एक्सपर्टाइज नहीं थी वहाँ पे हम लोग फ्रेंचाइजी ले ली. सो फैक्ट्री कर रहे हैं हम लोग सानंद में, GIDC में फर्नीचर की, जो हमको लगा कि नहीं ये प्रोडक्ट कस्टमाइज़ करनी है, थोड़ी ये बनानी है, ये मल्टीप्लाई करना है. सो दैट्स हाउ इट्स अ बेबी राइट नाउ. सो रियल एस्टेट बिजनेस वो 26 साल का आदमी है ऐसे समझो, और फर्नीचर अभी 1-1.5 साल का बेबी है. Right. सो बेबी और आदमी में जो फ़र्क है वो फ़र्क तो रहेगा ही रहेगा, बट ग्रेजुअली द इकोसिस्टम में नए नए बिजनेसेस जो ऐड हो रहे हैं वो ग्रेजुअली, जैसे ये रियल एस्टेट 26 साल में पहुंचा उतना टाइम नहीं लगेगा, पर ये 3-4-5 साल में स्केल इतने फास्ट हो जाएंगे, बिकॉज देयर इज समवन हु कैन पुल द बिजनेस. एंड सेम कस्टमर है, सेम कस्टमर को आप सर्विस दे रहे हो, उनके प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, उनको फर्नीचर चाहिए तब फर्नीचर दे रहे हो, उनको भी एक ही जगह डील करनी है. शिवालिक में गए, फ्लैट भी ले लिया, वही फर्नीचर कर देंगे. तो जब तक इंस्टॉलमेंट खत्म हो जाए तब तक हम लोग पोजीशन भी रेडी करके दे देते. आप यही वर्टिकल में इंटीरियर सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करते हैं. Yes. So that involves taking furniture from only your brand, your franchisees, or you can go out and take from outside people. No, as you can go out and take from outside because we don't combine forcefully to any business कि आपको यही ऐसे ही करना पड़ेगा. All businesses are integrated also and they are standalone also. So they can. So does it turn out to be cost effective for customers who opt for your interior solutions? So cost is never concern. Cost तो I think शायद कम ज़्यादा नहीं, पर उनके जो टीथिंग इश्यूज है एक ही जगह बैठ के उनको पूरा एक साथ सब डील करने मिल जाए, बारी बारी हर एक लोगों से डील नहीं करना पड़े, वो ज़्यादा, बिकॉज आज टाइम का वैल्यू ज़्यादा है. एंड व्हेन यू आर डीलिंग इनटू द HNIs, they are only working for the time. So the remaining 2 verticals are the construction company and the real estate development business. I feel everybody is aware what that is about. So how do you feel right now
of building this ecosystem of 5 verticals right now from maybe past 3 to 4 years and making these each vertical reaching to this stage? And how has been the response of the people after looking at this ecosystem? सो पहले आई कंपेयर टू डिफरेंट थिंग. जो पहले आप लोगों ने अलग बिजनेस किए उससे और इससे कंपेयर करूँ तो दिस इज मच मोर सिंपलर बिकॉज सेम कस्टमर है, सेम काइंड ऑफ बिजनेसेस है, हम लोग करते ही कहीं ना कहीं छोटा मोटा. सो इसमें स्केल ज़्यादा हो रहा है, कस्टमर के रिस्पॉन्सेस अच्छे आ रहे हैं, उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है और ग्रेजुअली उनके फीडबैक लूप से हम लोग वापस रिफाइन कर रहे हैं. और कस्टमर भी आपसे ज़्यादा तरीक़ों से जुड़ा जा रहा है. हाँ, वो रेफरेंस से फिर मल्टीप्लाई होता Right. है. So now moving to one of the interesting topic, which is the gift city. You have 3 launched projects right there and 2 upcoming over there. So before that, I want you to give a basic idea about gift city. So gift is a tax बेनिफिट वाले सिटी. सिंपल लॉन्ग वे लैंग्वेज बोल रहा हूँ. हर एक कंट्री में एक ऐसा एक जोन होता है जहाँ पे आपको टैक्स के जो बेनिफिट्स है वो मिलते हैं. इंडिया में ये गिफ्ट सिटी है. सो गिफ्ट के अंदर गवर्नमेंट ने 850 एकड़, एवरेज 833 समथिंग एकड़ करीबन पूरा गिफ्ट किया है. उसके अंदर 350 एकड़ के आसपास SEZ है जहाँ पे टैक्स का बेनिफिट मिलता है. Okay. सो इंटरनेशनल कंपनीज जो इंटरनेशनल करेंसीज में काम कर रही है, जो रेवेन्यू उनका इंटरनेशनल करेंसीज में आ रहा है, डॉलर हो गया, यूरो हो गया, सो दे कैन डू देयर बिजनेस देयर. इवन इंडियन कंपनीज जो ऑफशोर अकाउंट्स कर रही है बाहर दुबई में या या US में कहीं पे, दे कैन डू देयर अकाउंट हियर. जो लोग इंडिया में बैठ के फॉरेन में अकाउंट्स खोल रहे, दे कैन डू देयर बिजनेस फ्रॉम हियर. इनकम टैक्स नहीं लगता, GST नहीं लगता, स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती, जो SEZ के अंदर है. Got it. राइट. यानी कोई भी कंपनी, बी इट इनसाइड इंडिया और आउटसाइड इंडिया कंपनी, जो ऑपरेट कर रही है इंडिया के बाहर, वो लोग खरीद सकते हैं वहाँ पर. सो देयर इज अ सेकंड जोन विच इज द डोमेस्टिक जोन, जो DTA बोल रहे हैं. जो Okay. 350 एकड़ से 850 एकड़ या 350-400 एकड़ निकाल दो, सो करीबन 60% से 55% जो डोमेस्टिक है, विच इज कॉल्ड एंसिलरीज के लिए उन्होंने एक अलग जोन किया है. देयर यू कैन बाय एनीथिंग, बट वहाँ पर टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा. That is normal area, normal. सेम. So what is different about Gift City in terms of, I heard about waste collection and district cooling, कुछ वो बहुत ज़्यादा highlighted है कुछ Gift City के बारे में. So for the developer, see customer के लिए it might not be so much different, but developer के लिए एक तो सिंगल जगह प्लान पास करना है. आपको सभी सर्विसेज एक ही जन दे रहा है. यहाँ पे कॉर्पोरेशन, पानी, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिक, ये सब अलग. वहाँ पे सब कुछ एक ही जन अप्रूवल बॉडी है, एक ही जगह से आपकी सर्विसेज आ रही है. तो यू डोंट हैव टू कीप प्रोविजंस ऑफ एवरीथिंग के सब स्टेशन यहाँ रख लिया, DG सेट यहाँ रख लिया, वो सब की ज़रूरत नहीं. तो फॉर अस इट इज़ अ सिंपलर प्रोसेस. कॉम्प्लिकेशन थोड़े डिज़ाइंस एंड बिल्डिंग की हाइट में होते. नॉट कॉम्प्लिकेशन आई वुड से, बिकॉज इतने अच्छे बिल्डिंग आ रहे हैं तो हम लोगों को भी लग रहा है कि नहीं और कुछ अच्छा करते हैं. सो चैलेंजिंग हो जा रहा है. सो चैलेंजिंग करने में थोड़ा सा टाइम लगता है जो नॉर्मल बिल्डिंग बनाते हैं और गिफ्ट बनाते हैं. देर आर सिंपलर बिल्डिंग ऑल्सो इन गिफ्ट सिटी, but as a DNA of Shivalik, we always wanted to do something else, and where already other developers are challenging themselves, तो यहाँ पे तो और चैलेंज आती है. So that takes time. So gift is unique in terms of customer को भी पूरा infrastructure जो भी है वो well defined मिल रहा है. नॉर्मल सिटीज़ में ऐसा नहीं होता. आप मेरे ऑफिस से आपके मेरे घर से बाहर जाओ तो इमीडिएटली आपको लोकल रोड, अदर सोसाइटीज़ मिलेगी. वहाँ पे पूरा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है. Now coming to how is the sales trend in Gift City? सो गिफ्ट में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है. कौन नया कर रहा है, क्या कर रहा है, देयर आर 2 काइंड ऑफ पीपल अगेन. एक को खाली इन्वेस्ट करना है और सस्ता चाहिए. Right. तो दे आर नॉट बॉदर्ड कि भी बिल्डिंग कैसा है कैसा नहीं, मुझे ये प्राइस से मिल गया. देयर आर सेकंड काइंड ऑफ पीपल कि जिसको क्लास चाहिए, अलग चाहिए, उनके लिए अलग बिल्डिंग है. सो वो भी बिक रहा है, वो जो दूसरे वाले वो भी बिक रहा है, पर दोनों प्राइस में बहुत फ़र्क है. यू कांट कंपेयर कि ये 7,000 का है 10,000 का है. जो 7,000 वाले उनको 40 गिफ्ट में रहना है. दे आर नॉट बॉदर्ड बिकॉज दे माइट नॉट बी यूजिंग. उनको खाली एक इन्वेस्ट कर दिया मैंने गिफ्ट में, ये खाली बोलना है, रहना है. और जिन लोगों को ऐसा है कि नहीं मुझे रहना भी है, शायद इन्वेस्टमेंट भी किया है, मेरा टेस्ट अच्छा है, मुझे अच्छी जगह इन्वेस्ट करना है, तो दे आर पेइंग मोर. Understood. जैसे गिफ्ट में 7,000 की प्राइस भी है,
10,000 की भी है, 14,000 की भी है. Now you have residential and commercial both in the SEZ zone. How is your response for your projects for sales? क्रेजी बिकॉज वी वर सेलिंग बिलो प्राइस. पहला जो प्रोजेक्ट था आजू बाजू 6,000 के आसपास बिक रहा था, हम लोगों ने 5,000 से भी नीचे चालू किया था. बिकॉज वी वर द न्यू वन इन द गिफ्ट सिटी. लोग सेट थे, हमको लगा अगर नहीं किया, नहीं चला तो क्या करेंगे. देन वी प्लेड विद द कैश फ्लो. बराबर. फटाफट माल बेचते थे. पहले प्रोजेक्ट में नहीं कमाएंगे, वी ऑलरेडी हैव इन्वेंटरी ऑफ कपल ऑफ प्रोजेक्ट्स. सो पहले में नहीं कमाएंगे पर हाइप क्रिएट करते हैं. देन वी बराबर. हाइप. सो लोग आना चालू किए. सो हम लोग ने जब एंटर हुए थे उसके पहले गिफ्ट थोड़ा सा नॉर्मल पेस पे जा रहा था. व्हेन वी गॉट 4-5 प्रोजेक्ट्स का अलॉटमेंट, उसके बाद पहला जो प्रोजेक्ट था वहाँ पे हम लोग हाइप करना चालू किया. सो जैसे ही हाइप करना चालू किया, सभी लोकल लोगों को लगा कि नहीं यहाँ पे अभी शिवालिक भी आ रहा है, सो कुछ होगा. देन हम लोग ने थ्रो अवे प्राइस से माल बेचना चालू किया. देन आप देखो लास्ट 2-2.5 साल में जो गिफ्ट हाइप हुआ, तब से फिर हम लोग ने होर्डिंग मार दिया कि भाई 100% बुकड इन इतने दिन में. सो ग्रेजुअली इट हाइप्ड. देन सब लोग आने लगे. सो आगे जाके अभी सब मैच्योर डेवलपर, अहमदाबाद के डेवलपर आर कमिंग देयर. अभी गवर्नमेंट ने भी स्ट्रेटेजी चेंज कर दी ग्रेजुअली. सो अभी गिफ्ट का हाइप अच्छा है. नॉर्मली इफ़ योर कमर्शियल प्रोजेक्ट इज़ देयर तो वो लीजिंग के लिए होता है या सेल्स के लिए होता है, कुछ ऐसा फिक्स्ड कॉन्सेप्ट है? सो 4 में से जो 3 प्रोजेक्ट लॉन्च हुए, सॉरी, उसमें से एक हम लोग पूरा लीज करेंगे और 2 बेच दिए हम लोग. ओके. 2 आर फॉर सेल्स. You have spoken about that you are working towards the 2030 goals. Today I want to know what those goals are. So I think we'll reach in 27 because the way we work, वो 30 वाला प्लान 27 तक हो जाना चाहिए. Beautiful. गोल इज़ टू स्केल 5 to 6 टाइम. क्या क्या कैप आ रहा है, क्या क्या सर्विसेज चाहिए ये स्केल करने के लिए. पैसा चाहिए, आदमी चाहिए, सिस्टम चाहिए, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए. सो एवरीथिंग वी आर वर्किंग, वी आर कनेक्टिंग डॉट्स. थोड़ी चीज़ है जो प्राइवेट रखे तो भी ज़्यादा अच्छा है, बट स्केल इज़ 5 to 6 टाइम विच वी आर एक्सपेक्टिंग. एंड उसके लिए जो करना पड़ रहा है वो हम लोग करेंगे. और जो नए वर्टिकल डालने होंगे आज से लेके समझो तो 30 तक 6 साल है, तो 6 साल में 5-6 वर्टिकल तो नहीं डाल देंगे टू स्केल द बिजनेस. बट बैकवर्ड फॉरवर्ड ही होगा. All the best for Thank you. and hoping that to happen soon. Thank you. So now I want to understand few things that you have had a 26 years journey. What might be your biggest learnings from this journey? So believe in yourself. अगर आपको कोई धंधा ख़राब नहीं होता, खाली आपको लग रहा है कि भी नहीं यार ये धंधा ज़्यादा अच्छा है, ये धंधा ज़्यादा अच्छा है, then you keep changing yourself. आप डाइवर्स हो जाते हो. then again when you diverse, then again you are starting from zero. So हम लोग ने बहुत प्लस माइनसेस देखे, अर्थक्वेक देखा, मार्केट कॉलेप्स देखा, रेट्स देखी, पर धंधा तो यही सालों से यही चल रहा है. सब लोग यही धंधे में कमा रहे हैं. सो रियल एस्टेट में 100 में से 99% लोग कमाते हैं, बट बिलियनर नहीं होते, पर सब कमाते हैं ग्रेजुअली. देन सो लर्निंग इज लाइक फोकस ऑन वन बिजनेस. लीन जाओ तो ज़्यादा स्केल होगा. इंस्टेड ऑफ डूइंग एवरीथिंग, ये भी मॉल भी कर दिया ना, प्लॉटिंग भी कर दिया ना, फ्लैट भी बना दिया ना, कमर्शियल भी बना दिया, सब कुछ करोगे तो इट्स टफ टू स्केल. बिकॉज आप हर एक टाइम नया करने जाओगे. इट्स बेटर टू फोकस ऑन टू 1 or 2 वर्टिकल देन कीप स्केलिंग, तो फास्ट टर्न आउट होगा. एंड यू विल बी नोन बाय समथिंग कि ये इनका एक्सपर्ट है. जैसे स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं, टीथ स्पेशलिस्ट होता है, आई स्पेशलिस्ट होते हैं, वैसे यू शुड बी स्पेशलिस्ट बाय समथिंग. वो करोगे तो स्केलिंग इज मच मोर ईजियर. सो दैट इज द. Now, various times in past decade, real estate industry has had a setback. GST बोलो, demonetization बोलो, COVID बोलो, जो सबके लिए भी था. Each time, how was your experience and how did you come back out of these situations? ये सभी चीज़ें ना वो एक के ऊपर नहीं हुई. सो नॉट अगर मेरे ऊपर खाली हो तो मेरा सेटबैक हो सकता. ये गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स किए. ये रिफॉर्म्स क्यों कर रहे हैं गवर्नमेंट? यू शुड गेट इनटू दैट डीप थिंग. क्यों चेंज कर रहे हैं? आगे नया करने के लिए. अच्छा मैं ही अफेक्टेड हूँ या सब अफेक्टेड है? तो मेरा प्राइस बढ़ा है तो बाजू वाला का भी बढ़ा है. सो कस्टमर आ रहा है तो मैं 100 की जगह 105 चार्ज कर रहा तो बाजू वाला भी 105 चार्ज कर रहा है. तो कॉम्पिटिशन कहाँ है? बराबर है. बट आप कोप अप नहीं कर पा रहे, देन यू विल बी अगेन जीरो. सो इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग चेंजेस या डिबेटिंग ऑन चेंजेस, यू शुड फोकस हाउ यू कैन वर्क मोर विद दिस चेंजेस. बिकॉज बाजू वाले लोग कोप अप नहीं करेंगे
वो क्रिटिसाइज करते जाएंगे। उससे अच्छा बेटर है आप 4 आदमी और लगा दो और इसको स्केल करते जाओ। सो जो भी चेंजेस हुए ना, वहाँ पे हम लोग ने हमारी स्ट्रेंथ और बढ़ा दी कि और आदमी डाल दो, जो नहीं समझ में आ रहा और कंसल्टेंट डाल दो और एक्सपर्ट्स को लेके आओ, लेट अस नो, हम लोग लर्न करते। दैट्स हाउ वी स्केल्ड। Now you are the chairman of CREDAI Ahmedabad. What do you aim, or what are your objectives and things that you have to fulfill during this tenure? सो सिंप्लीफाइंग द सिस्टम्स। गवर्नमेंट में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि आप लॉ को चेंज करो, थोड़ा सा एफएसआई को निकाल के रेरा एफएसआई कर दो, रेरा एरिया कर दो। जो हम लोग को मिल रहा है, जो हम लोग बेच रहे हैं, वही आप हमको दो। ये एक चेंज है। द सिंक बिटवीन द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, जैसे डेवलपर का और चैनल पार्टनर का सिंक है, वो करे। डेवलपर की खुद की जो कम्युनिटी है उसको बॉन्ड करे अच्छा सा, बिकॉज एक दूसरे से बात करें, बिकॉज कम्युनिटी छोटी है और आधे लैंड ओनर है और आधे डेवलपर है, तो एक दूसरा ही बिजनेस हो जाता है। जितना एंगेजमेंट होगा डेवलपर के साथ, चैनल पार्टनर के साथ, गवर्नमेंट के साथ बॉन्ड करे, जितना कनेक्ट ज़्यादा होगा ना, वैसे आपके रिफॉर्म्स होते जाएंगे, वैसे बिजनेस बढ़ता जाएगा। और एक साथ मिल के सिटी को अच्छा बनाना है, तो अलग अलग घूमोगे तो जो इंटरनल सिंक है वो करते हैं, गवर्नमेंट से डिबेट करते हैं कि नहीं ये चेंज करोगे तो वी आर देयर टू सपोर्ट यू। जहाँ पे आपको जो भी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो वो अहमदाबाद से पहले चालू करो, बिकॉज पॉलिटिकल सिटी है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो मे भी पूरे इंडिया में भी हो सकता है। सो दे आर ऑल्सो टेकिंग चैलेंजेस कि कर रहे हैं, पर ग्रेजुअली सो जितना पुश हो रहा है उतना कर रहे हैं। गवर्नमेंट को भी, स्टेक होल्डर्स को भी, डेवलपर्स को भी, वेंडर सपोर्ट सिस्टम कर रहे हैं, नए जो भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, नए जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है, वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू सपोर्ट देम कि चलो यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म खड़ा कर रहे हैं कि जिसको देखना है, जिसको आना है। सो इट्स अ रियल एस्टेट के लिए पूरा जो 360 डिग्री है, नई चीज़, गवर्नमेंट, ब्रोकर्स, डेवलपर्स, लैंड ओनर्स, उसको सिंक कर रहे हैं। Understood. You talked about FSI RERA. That also got recently implemented. Had a change in some way. नो, सो वी आर आस्किंग गवर्नमेंट कि आप कॉम्प्लिकेशन जो भी है एफएसआई का, बिल्टअप का, वो सब निकाल दो। यू अलॉट अस द कारपेट एरिया, द रेरा एरिया। सो डॉक्यूमेंट में कितना सिंपल हो जाएगा। मुझे गवर्नमेंट ने सपोज 1000 स्क्वायर का प्लॉट है, सो 1000 स्क्वायर के प्लॉट के अंदर मुझे 4000 स्क्वायर रेरा एरिया मिल रहा है। सो जो रेरा एरिया मिल रहा है वही मैं बेच रहा हूँ। सो मैं जो मुझे मिल रहा है वो मैं बेच रहा हूँ। तो डॉक्यूमेंट इज सिंपलर, सॉफ्टवेयर कैन बी सिंपलर, बैंक लोन्स, इनकम टैक्स, जीएसटी, सबके लिए एक ही मेजरमेंट रहेगा। न तो अभी क्या हो रहा है, बिल्टअप एरिया अलग, सुपर बिल्टअप अलग, कॉन्ट्रैक्टर का बिल्टअप अलग, कारपेट एरिया अलग, विथ बेसमेंट बिल्टअप अलग, विदाउट बेसमेंट बिल्टअप अलग। सो समझ में नहीं आ रहा है लोगों को भी, बैंक को भी दिक्कत, सबको दिक्कत। तो उसके अच्छा देन यहाँ ये रिबेट मिलेगा, ये डिडक्शन मिलेंगे, लिफ्ट के सामने वाला डिडक्शन नहीं मिलेगा, स्टेयर का मिलेगा। सो कॉम्प्लिकेशन बहुत है, उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। Understood. सो बाकी जो नहीं बेच रहे, जो रेरा एरिया में नहीं है, वो जितना बना तो हु डजन लाइक बिगर पैसेजेस। बिल्डर को तो कॉस्ट स्पेंड करनी है ना, तो बिल्डर कभी जब रेरा तो है ही, अब कुछ भी अगर बिल्डर गलत भी करता है तो कंप्लेन कर दो। वी ऑल्सो डिड क्रेडाई में ब्रोकर्स का और हमारा एक कॉमन ब्रोकरेज पैटर्न फ्रीज कर दिया कि ये ब्रोकरेज पैटर्न होगा, और ऐसे ही सो वी केप्ट द फ्लेक्सिबल परसेंटेज एंड द कैसे पेमेंट डिसबर्स करना है वो पैटर्न वो फ्लेक्सिबल कर दिया, बाकी फॉर्मेट सेम कर दिया। सो स्टैंडर्डाइजिंग कर रहे हैं सब जगह पे। Collaboration instead of. So now coming to little end of the podcast, I want to know a few things personally, how you are. So what I saw that you have made a fixed set of decisions that क्या खाना है, क्या पहनना है. I want to know the change in your life after making those decisions fixed. सी इन माई पर्सनल लाइफ मुझे कन्फ्यूज़न ज़्यादा नहीं चाहिए। आई एम सिंपलर, इतनी चीज़ खानी है, करीबन 32 चीज़ है, उतना खाता हूँ। उसमें से जो रेसिपी बनती है दैट इज़ ओके। जैसे रियल एस्टेट हो गया तो रियल एस्टेट ही करना है, उसमें जो एक्सपेरिमेंट होता है वो करते हैं। ब्लैक वाइट ग्रे पहनता हूँ, उसमें से जो डिज़ाइन बनती है वो करता हूँ। सो थिंग्स आर मोर सिंपलर, यू प्ले विद द डिज़ाइंस, यू प्ले विद द फ्लेक्सिबिलिटी, बट आप रिस्ट्रिक्ट भी नहीं कर रहे। रेड कलर पहनूँ नहीं पहनूँ क्या फ़र्क पड़ेगा, हूँ आई एम गोना इम्प्रेस। Right. यू शुड बी इम्प्रेस बाय योर वर्क, नॉट द वे यू लुक। और लुक तो अच्छा वाइट में भी आता है, वो सेज कि नहीं रेड में ही आएगा। सो इट्स हमारा परसेप्शन है, आप कितना रिस्ट्रिक्ट करते हो। आई डोंट रीड न्यूज़पेपर सिंस 12-13 ईयर्स, मेरे घर पे टीवी नहीं है,
टीवी देखता भी नहीं हूँ मैं. सो सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो भी है मेरे पास वो रिफाइन करके आती है. देयर इज़ वन एजेंसी जो 10 साल से मुझे पूरे इंडिया के न्यूज़पेपर कट करके मुझे भेजती है. उसके वो 10 टाइम्स चार्ज करती है, पर मुझे डिस्ट्रक्शन नहीं चाहिए. फिर सो दैट इज सेट बिजनेस. इसी टाइम खाना है, यही खाना है, यही पहनना है और यही धंधा करना है. वी आर नॉट इनटू मॉल्स, वी आर नॉट इनटू मल्टीप्लेक्सेस. हम लोग ट्रेंड में प्लॉटिंग में भी नहीं गए. वी हार्ड कोर दुकान, मकान एंड ऑफिस, यही करना है. उसमें एक्सपेरिमेंट करो. सो दैट्स द सेट माइंडसेट. so very nice of you. So coming to your advice to the younger generation in real estate industry. सी धंधा अच्छा है, स्केलिंग है. लोग सेट माइंडसेट से आते हैं, मेरे पास फाइनेंस नहीं है, फंड नहीं है, सो मैं नहीं कर सकता. ऐसा नहीं है. एनी बिजनेस विच यू वांटेड टू डू वो रिस्क के ऊपर है. रियल एस्टेट है क्या? कॉन्ट्रैक्टर को काम कर दिया, दे दिया, आर्किटेक्ट को प्लानिंग के लिए दे दिया, ब्रोकर्स को बेचने के लिए दे दिया. तो रियल एस्टेट है क्या? रिसोर्सेस मैनेज करना है और रिस्क लेना है. बाकी तो क्या है, ये सबको इकट्ठा करके जो प्लस माइनस सबको पेमेंट करके जो बचा वो आपका, दैट इज कॉल्ड द रियल एस्टेट. तो रिस्क के अलावा तो कुछ है ही नहीं. अब रिस्क कितना ले पा रहे हो, डेट कितना क्रिएट कर सकते हो, रिस्क. और आगे या तो फिर आप ब्रोकर बन लो या वर्किंग पार्टनर हो जाओ या पीएमसी से काम कर लो या जॉब कर लो. टाइमिंग बिजनेस अच्छा है, कभी नुकसान नहीं करेगा. आप ऐसा समझ रहे हो कि मैं बिलियनर हो जाऊंगा स्टार्टिंग में, तो ये टेक में ही हो सकता है नॉर्मली, या कोई स्टार्टअप ऐसा पिक हो गया. पर यू सी दैट वन सक्सेस सामने 1000 फेलियर भी है. रियल एस्टेट में फेलियर इतना नहीं है. Understood. So it is beneficial for Sure. younger generation to enter this industry. So I think so. Thank you so much, Chitrak ji, for becoming a part of this and coming on this podcast. And it did give good amount of learnings about the Ahmedabad's real estate industry, majorly about the gift city and how you have built this wonderful 360-degree ecosystem. Thank you. And how you are giving back to society, as well as scaling the business as well, and a few things about your personal life. Thank you very much. Thank you so much. Thank you.